Hello everyone. Today we are going to discuss about antihypertensive drugs. In the previous video we have discussed about angina pectoris, drugs used in treatment of the angina pectoris. So we are discussing about the topics in Unit 2 Medicinal Chemistry 2nd BP-501T as per PCI syllabus or university syllabus. So now we are starting today's discussions on the antihypertensive drug. So before starting the discussions about antihypertensive drug, I want to discuss with you about the hypertension. What is the hypertension? Hypertension means you can say physiological disorder in which the blood pressure of arterial wall get increased. That is called hypertension. And reversely, hypotension, it is a physiological disorder in which the blood pressure of blood vessels get reduced. So that is called as hypotension. So we are here discussing about the hypertension or drugs used in treatment of the hypertension. So hypertension or hypotension both are related with the blood pressure. If the blood pressure of the body get increased, then it will be known as the hypertension, and the blood pressure of the body get reduced, then it is called as hypotension. The blood pressure that is related to the pressure exerted by the blood against the arterial wall. So that is the blood pressure. That the pressure that is exerted by the blood onto the artery wall, that is called as blood pressure, because artery wall bear the pressure that is exerted by the blood on the wall. So that is called as the blood pressure. And blood pressure of the body can be determined by various, you can say, various mode, we can say so this is we are discussing about the blood pressure. Look at here, हमने अभी तक जो डिस्कस किया दैट इज ब्लड प्रेशर. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में. हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या हैं? हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो हैं जो ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर्स को कम करने के लिए, हाइपरटेंसिव कम करने के लिए यूज होती हैं. और ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर ये क्या है? ब्लड प्रेशर जो है कि हमारा जो ब्लड है जो हमारी वॉटरीज में है वो आर्टरी वॉल पे जितना ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है देन क्या होगा? द कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर कम है तो उस कंडीशन को क्या होगा? हाइपोटेंशन. हाइपो, द ब्लड प्रेशर इज लो, हाइपो, एंड ब्लड प्रेशर इज हाई, देन हाइपर टेंशन. ये दोनों टर्म आपको समझ में आई होगी, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन. Blood pressure can be determined by, you can say, the determination of the blood pressure. Various factors involves. Essentially compromise the factors there. You can say the factors are ventricular contraction, atrial and capillary resistance, elasticity of the atrial wall, and blood pressures versus viscosity. These four factors that are
responsible for blood pressure. Blood pressure either increase or decrease, that is depends on these 4 factors. ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, इसके लिए 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। एक आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक आपका एट्रियोलल और कैपिलरी रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट आपका इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स एंड ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज द विस्कोसिटी। इसका क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में है और जो है लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि हमने डायग्रामेटिक वे में समझाया था, ये आपका राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो यहाँ पर राइट आर्टरी में जो ब्लड इम्प्योर ब्लड आता है सुपीरियर वेना के वा इन्फीरियर वेना के वहाँ से, इम्प्योर ब्लड जो है ये ट्राइकैप्सिड वॉल खुलने से इसमें आता है, इसमें राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड बढ़ता है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल जो है कौन सा पल्मोनरी जो है आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में, और लंग्स से फिर प्योर होकर के वापस ब्लड कहाँ आता है, राइट लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, यहाँ से ये बाइकैप्सिड वॉल ओपन होंगे और ये वाट किस में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से निकलता है ओरोटा, और ओरोटा से क्या है, ये प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये ब्लड हार्ट का हमने डिस्कशंस पहले भी दिया था, और इससे क्या ब्लड हमारा पंप होता है। जैसे कि ये अरोटा में प्योर ब्लड है, हार्ट पंप करता है और ये प्योर ब्लड क्या है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस पंप के कारण मोटर की तरह काम करता है ये हार्ट हमारा, एंड इस पंप के कारण क्या होगा, हार्ट ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और इससे जो ब्लड पंप होगा और इससे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा हमारी आर्टरीज पे, एंड वो आर्टरीज पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि जो ये हमारी आर्टरी है इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये जो ब्लड है वो इस आर्टरी पे दोनों तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। ये चीज़ कहलाएगी ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जो हमारा वेंट्रिकुलर पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना प्रेशर देता है, उस पर डिपेंड करेगा। एट्रियोलर एंड कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, जो आर्टरी है इसमें जो ल्यूमन एरिया है वो कितना है, कितनी बड़ी आर्टरी है, छोटी आर्टरी है, उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है इसमें अथोरमा जमा हो गया हो, LDL लो डेंस लिपिड जमा हो गया हो, जैसे कि हमने पहले देखा था एंजाइना पेक्टोरिस में, तो इसका ल्यूमन एरिया जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, ल्यूमन डायमीटर कम हो जाएगा। सर व्हाट हैपन व्हेन द ल्यूमन डायमीटर ऑफ एनी कैन से आर्टरी विल रिड्यूस, then what happen, this like a athorma that is formed, like athorma, you can say athorma, and this athorma it is formed here. So this athorma only, what happen, this lumen diameter that is get reduced and the blood pressure will increase on the wall of the artery and BP will be increased. तो लो डेंस लिपिड से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ब्लड के लिए इसके। देन इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल, जैसे अथोरमा जमा हो जाएगा या इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो व्हाट हैपन, ये जो हमारा आर्टरी है, आर्टरी का जो वॉल है उसके अंदर जो क्या होना चाहिए, हमेशा आर्टरी में इलास्टिसिटी होती है कि ये अपना डायमीटर कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है प्रेशर बढ़ने पे, एग्जर्ट होने पे। तो इलास्टिसिटी जो है, दैट इलास्टिसिटी क्या होगा, ये कम हो जाएगी, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर इलास्टिसिटी कम होगी तो हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और दूसरा है ब्लड वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी, ब्लड कितना वॉल्यूम ब्लड हमारा प्रेशर जा रहा है, कितना इसमें से जा रहा है उसके ब्लड वॉल्यूम पे, और उसकी विस्कोसिटी क्या है कि मीन्स लेस विस्कस है इजीली चला जाएगा, और ज़्यादा विस्कस है तो क्या होगा, ये टफ होगा इसमें से फ्लो होना। ओके, सो ये चारों फैक्टर जो हैं वो ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करेंगे। इससे चारों से जो है हमारा ब्लड प्रेशर कैसे अफेक्ट होगा, जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट।
आगे चल के देखते हैं हम लोग। सो हमने अभी तक डिस्कस किया दैट ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, जो आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर है उसको ही क्या कहते हैं, हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो ज़्यादा हो या कम हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन होगा, कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। आज हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन का डिफरेंस कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। इन नॉर्मल और रिलैक्स और सिटिंग एडल्ट ब्लड प्रेशर कुड बी एज लो एज 100 mmHg and as high as 140 mmHg. The normal BP is 80 mmHg systolic, as diastolic, as well as the 120 mmHg is the systolic. So that is the important things, that in normal conditions, when patient in the normal conditions, in sitting or in the sleepy conditions or sitting condition, normal conditions, the blood pressure we can say should be as low as 100 mmHg or highest as 140 mmHg. We say 100 to 140 mm of Hg. So that is the normal one. That is for the systolic, as we can say no and systolic, that is near about 80 to 100, and diastolic that is 80 to 100, and systolic it may be near about 100 to 140. So that is the point. ओके तो अगर ब्लड प्रेशर रिलैक्स कंडीशन में किसी पेशेंट्स का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मली कह सकते हैं 100 to 140 डिग्री तक mmHg तक होता है, तो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 से 100 तक है, और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक इसमें वेंट्रिकल्स जो है वो प्रेशर करेंगे, पंप करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, ब्लड जो रिटर्न जाएगा वो सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक में क्या है, जब ब्लड हार्ट रिलैक्स होगा और ब्लड जो है वो लंग्स से आएगा, और कहाँ से आएगा, अब आर्ट्रियल पार्ट है वो फिल होगा, लंग्स से आएगा और बॉडी से आएगा, तो वो दोनों आर्टरी में फिल होंगे, और दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो पंप करेंगे, तो ब्लड जो है लंग्स में जाएगा और बॉडी के अलग पार्ट में जाएगा, तो इसको बोलेंगे सिस्टोलिक। जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो सिस्टोलिक होता है, और आर्ट्रियम जब कह सकते हैं डायलेट होते हैं तो उसको बोलते हैं, जिसमें जो ब्लड फिल होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर 80 to 100 mmHg हो सकता है, और सिस्टोलिक जो है 100 to 140 mm of Hg। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन जो है बीपी का क्या होना चाहिए, जो हमने देखा। ये अब आजकल क्या है, एज पर WHO, जो आजकल WHO ने जो न्यू गाइडलाइंस जारी की है, एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द WHO, व्हाट इज अबाउट द से ब्लड प्रेशर, एज पर द WHO guidelines, that is the diastolic blood pressure we can say near about 95 mmHg or more, as well as we can say a systolic blood pressure is remain 150 mmHg, then it is called as the normal. So you can say normal range get increased from the 95 to 150 mmHg. The maximum, the highest, you can say 95, or you can say normally 100 mmHg. If highest mmHg for systolic is the 100 and diastolic is 100 and systolic is 150, then it would be considered as a normal as per the WHO guidelines and new guidelines. So that is the point, and that we are discussing here. तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका हम जो WHO की जो गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इसको काउंट करेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर पहले क्या था 80 डिग्री mm of Hg, सॉरी नॉट डिग्री, 80 mm of Hg अगर ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, और 120 mm of Hg अगर ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक आर्टरीज में, तो क्या कहेंगे, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। आजकल क्या हुआ, ये रेंज WHO ने इंक्रीज कर दी कि वो 80 से अगर 95 और 100 mmHg है तो नॉर्मल में होगा डायस्टोलिक, और
जो 120 था उसको 150 तक कर दिया कि 150 mmHg तक है तो वो भी नॉर्मल बीपी में कंसिडर होगा। अगर 150, सो यू कैन से हाइपरटेंशन विल बी कंसिडर एज इफ द ब्लड प्रेशर गेट इंक्रीज फ्रॉम 150 मोर देन 150 इन एडल्ट, more than 150 mmHg, then it is considered as a hypertension. If the blood pressure is lower than, you can say 60 mmHg, lower than 60 mmHg, 60 to 100, then it is called as the normal range for diastolic. So अगर 60 से नीचे है, less than the 60 mmHg, then it is called as the hypotension, hypotension, low, hypo. Okay, तो hypotension की low range क्या होगी? That is 60. Hypertension की hyper range होगी, that is 150 mmHg. So the next you can say average range for hypertension, you can say blood pressure. If the that is if the below than 60 mmHg, then hypotension. If above than 150 mmHg for the systolic, then is the hypertension. So average range that is nowadays is considered as a 100 to 150 mmHg instead of 80 to 120 mmHg that was previous. Now it is considered as a 100 to, or you can say 60 to 150 mmHg. I think you understood, you got the point in very clear way. So now we are discussing next part, next topic now. So it is okay, I think it is clear now. Now we are discussing about the hypertension, because hypertension means if the diastolic pressure or systolic, diastolic may be from up to the 100 or systolic more than the 150 mmHg, then we can consider as a hypertension. Diastolic 100 or 95 or systolic 150 mmHg as per WHO new guidelines, that we have discussed previously. So according to this, the hypertension we can classify into two categories. Hypertension we can classify into two categories. One is the primary or essential hypertension, another is the renal or renal hypertension. Two types of hypertension: primary hypertension or essential hypertension, another is renal hypertension and you can say. So first and second, two types we can classify hypertension in the two categories: primary or essential hypertension as well as renal hypertension. What do you mean by this? Now we are discussing what happened. It is the renal or you can say primary or you can say essential hypertension. What do you mean by this? The blood pressure you can say that is increases without any cause, that is called as without any reason, because in the in rest conditions, if the blood pressure get increased without any reason, you can say logical cause, or you can say without any logical reason, if the blood pressure get increased, then it is called as essential hypertension or the primary hypertension. Means patient is suffering by the hypertension without any cause is the blood pressure get increased. What do you mean by the renal hypertension? Renal hypertension, that is especially caused by you can say disturbance in the renal artery, stenosis, or you can say pathological conditions, and it is especially due to the infections or inflammation in the kidney, or that is called as nephritis. So renal hypertension is due to the nephritis. Okay, and common and high or essential hypertension, that is without any logical reasons. Okay, so that is the two types of the hypertensions. One is the renal hypertension. Renal hypertension, that is the deficient, you can say disorders in the renal, means like nephritis. Nephritis means inflammation in the nephrons in the kidney. So that is called as nephritis. So it is due to the nephritis, that is also called as the you can say, because the blood may not be purified, you can say, and filtration may not be proper. So that condition is called as the renal hypertension. देखिए, तो हमने अभी यहाँ पे दो टाइप्स के जो है हाइपरटेंशन डिस्कस किया. एक आपका कॉमन और इसेंशियल हाइपरटेंशन, और दूसरा आपका रीनल हाइपरटेंशन. कॉमन इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन जो कॉमन कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशंस में, जो रेस्ट कंडीशन पे अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज हो गया, जिसका कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स रीजन नहीं है, किसी भी कारण से इंक्रीज हो सकता है. साइकोलॉजिकल, आपने कुछ सोच लिया, कुछ विचार लिया, कुछ माइंड में टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया. सो दैट इज विदाउट एनी
एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन एनी कैन से कोई भी आपका कंडीशन जो है मजबूत रूल कारण ना हो, और कुछ भी ऐसा साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे अगर इंक्रीज होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। और ये प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो वास्तव में इसको क्या है, एक हाइपरटेंसिव डिजीज है, और उसको हम बोलते हैं कॉमन हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरा जो क्लास है दैट इज तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज रीनल हाइपरटेंशन। और रीनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, रीनल डिसऑर्डर मीन्स किडनी डिसऑर्डर हो गया। और किडनी का काम क्या है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, फिल्ट्रेशन करती है। यूरिन का फॉर्मेशन तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर में यूरिया फॉर्मेशन होता है, और लीवर में जो यूरिया फॉर्मेशन होता है वो ब्लड में होता है यूरिया, और किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। मतलब यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, यूरिया इन लीवर एंड यूरिन इन किडनी नेफ्रॉन। तो यहाँ से जब फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी, और किडनी में जब फिल्ट्रेशन का काम होगा तो वो क्या करेगा कि ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और फिल्टर करेगा, और फिल्टर होकर के वो रीअब्जॉर्प्शन होगा, आपने देखा होगा लूप ऑफ एनले और डिस्टल कलेक्टिंग डिप्यूल्स एंड कलेक्टिंग डिप्यूल्स होकर फिर फाइनली जो है ये एक ऐसे बहुत कम क्वांटिटी जो है किडनी की, आप जानते हैं 125 ml पर मिनट जो है, पर मिनट यू कैन से, वो क्या कहता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, GFR है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है। ओके, तो इतना ml क्वांटिटी कह सकते हैं आप, 180 लीटर पर डे जो है किडनी फिल्टर करती है। बट यूरिनेशन कितना होता है, 1 to 1.5 लीटर ओनली, बाकी क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये किडनी का फंक्शन है। बट ये अगर किडनी फंक्शन जैसे प्रॉपर ना हो, ये इतना क्वांटिटी जो है यूरिनेशन ना हो, यूरिन जो है 1 लीटर से भी कम हो या 0.5 लीटर से भी कम हो, तो अगर यूरिनेशन डेली, तो इसको बोलते हैं हाइपर यूरेमिया। और इसको जो एन्यूरिया और हाइपोन्यूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया मतलब यूरिनेशन नहीं होगा, और ये हाइपोन्यूरिया मतलब कम यूरिनेशन होगा। तो इस कंडीशंस में जो आपका ये कंडीशन है उसमें किडनी डिसऑर्डर हो जाता है, और किडनी डिसऑर्डर होने से क्या होता है, हमारा हाइपरटेंशन होता है, और उसको बोलते हैं रीनल हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या हम देखा था पहले भी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। उसमें एक रीजन ये भी था कि ब्लड, देखिए 4th रीजन था कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर रीनल डिसऑर्डर है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कॉमन और एसेंशियल डिसऑर्डर है वो किस कारण हो सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाए आर्टरियल में, स्पेशली जिसको बोलते हैं कि हमारा अथोरमा जमा हो गया LDL के कारण, जिसके कारण हमने देखा था पहले भी, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होती है। तो उसका रीजन भी क्या हो सकता है यहाँ पर, आर्टरियल। तो ये इसेंशियल हाइपरटेंशन या नॉर्मल या एसेंशियल या कॉमन हाइपरटेंशन जिसको बोलेंगे उसमें आएगा, जो कि एक रेस्ट कंडीशन में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये, और क्या कहता है, आर्टरियल और कैपिलरी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, वो भी इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है कि आइदर उसका कोलैप्स हो गई, उसका वॉल्यूम ल्यूमन डायमीटर कम हो गया, कोलैप्स होकर के या जैसे भी हो, अथोरमा जमा होकर के। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है उसी में आएंगे। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन जो है वो एक साथ पंप करेगा, तो उसके जो अरोटा में और जहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो मेन रीजन जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो रीनल हाइपरटेंशन होता है, और आपका अथोरमा जमा होने से या ब्लड कैपिलरी जो आपका है उसका ल्यूमन डायमीटर छोटा हो जाने से, कम हो जाने से जो इंक्रीज होता है प्रेशर, उसको कॉमन हाइपरटेंशन या रीनल क्या कह सकते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो मेनली ये 2 रीजन हैं हाइपरटेंशन के। तो आई होप आप लोगों को हाइपरटेंशन समझ में आया होगा। सो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होना, ये क्या है, टेंशन। हाइपरटेंशन क्या हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, और हाइपोटेंशन क्या, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाना। तो एग्जैक्टली पहले क्या था कि 80 mm/Hg डायस्टोलिक और 120 mm/Hg सिस्टोलिक, ये रेंज जो है वो नॉर्मल थी। आजकल ये रेंज कितनी होगी, जो आपका 60 mm/Hg सबसे कम जो डायस्टोलिक, और 150 mm/Hg क्या है, सिस्टोलिक। ये 60 to 150 mm/Hg को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है एज पर WHO न्यू गाइडलाइंस। तो ये हमने डिस्कस किया था कि हाइपरटेंशन क्या है और कैसे इसको डिस्कस किया। अब हाइपरटेंशन 2 टाइप का है, प्राइमरी और रीनल। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, वो किसी भी कारण से, मतलब मेनली LDL का डिपॉजिट, लो LDL का डिपॉजिट हो जाने से होता है, या फिर जो ल्यूमन डायमीटर है, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिलिटी है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स की,
या आर्टरी की वो कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, मेनली ये दो रीजन है जिससे एंजाइना पेक्टोरिस, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो तो एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे, और किसी भी आर्टरी में हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा, टेंशन या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और एक दूसरा है रीनल हाइपरटेंशन। रीनल हाइपरटेंशन क्या है कि आपकी जो रीनल डिसऑर्डर है जिसमें जगह नेफ्रॉन का नेफ्राइटिस हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए। नेफ्राइटिस क्या है, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन, नेफ्राइटिस। उससे क्या हुआ कि जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जो ब्लड को है प्यूरिफाई नहीं कर पाएगी, फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो ये डिफरेंट अब हमने डिस्कस किया हाइपरटेंशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपोटेंशन के बारे में। ओके, एंड इसके टाइप्स ऑफ different types of hypertension we have discussed. And so next class we will discuss, next video we will discuss about classifications of antihypertensive drugs. So that is about the hypertension and introduction of hypertension, as you can say. So we can see in the short way, briefly we can say the classification of hypertension. Hypertension can be classified into different 5 categories. The sympathomimetic drugs means that increase the sympathetic activity, sympathetic nervous system, and vasodilators, and angiotensin converting inhibitors, and angiotensin second receptor antagonist, and last diuretics. So one by one in detail we will discuss in next class or next video about the you can say antihypertensive drugs in detail one by one. So today we have discussed about the hypertension, blood pressure, as well as the classifications of the antihypertensive drug. Only 5 class, that is sympathomimetic drug, vasodilators, angiotensin converting AEC inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors, AEC inhibitors, and angiotensin second receptor antagonist, as well as you can say diuretics. So one by one in detail about the meaning of these all, and in detail we will discuss in next class and next video. I hope today's lecture you got very nicely understood. ओके, आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मैंने क्लासिक 3 जो ये 5 क्लास के जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो क्लासीफाई किया, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, वेसोडायलेटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एईसी इनहिबिटर्स, और एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डायूरेटिक्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल डिस्कस किया कि कैसे क्या होता है, क्लासिफिकेशन और उसका क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन आज हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।